का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हर घर तिरंगा की थीम के साथ विजयवाड़ा में रैली निकाली गई, जिसमें मकामी सियासी लीडरों के अलावा ओहदेदारों और स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस दौरान मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। गुरुकुल स्कूल के तलबा ने 200 मीटर तवील कौमी परचम का मुजाहरा किया। मकामी लीडरों ने आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े पैमाने पर मनाते हुए हर घर पर तिरंगा लहराने का अवाम को मशवरा दिया। करनूल के कदीम तालीमी इदारे उस्मानिया कॉलेज में आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एनसीसी, रेड रिबन और एनएसएस के अलावा कॉलेज इंतजामिया और दीगर ने शिरकत की। करस्पॉन्डेंट अजरा जावेद ने कहा कि हमारा मुल्क आजाद हुए 75 साल मुकम्मल हुए हैं। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा अमृत महोत्सव को मुल्क भर में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हमारा मुल्क मजीद तरक्की करते हुए दुनिया भर में अपनी एक अलग शनाख्त बनाएगा। इस मौके पर कॉलेज कैंपस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। आज हम लोग उस्मानिया कॉलेज करनूल और हाजरा डिग्री कॉलेज करनूल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है विच हैज़ स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट to celebrate 75 years of independence. So today all our students, NCC, Red Ribbon, NSS, all the cadets, we have taken out a rally. करनूल में आपको की क़यादत में नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। इस मौके पर रैली निकाली गई। इसके बाद बुनकरों की जानिब से तैयार करदा कपड़ों की नुमाइश की गई। इस मौके पर बुनकरों को तहनीत पेश की गई। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में करनूल के मेयर और साबिक रुकन पार्लियामेंट ने शिरकत की। मेयर ने बताया कि जगन हुकूमत की जानिब से बुनकरों को सालाना 24,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पदयात्रा के दौरान बुनकरों के साथ इंसाफ का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिखाया है। मौजूदा तालीमी निज़ाम कठिन मुश्किलात से दो चार है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत तालीमी निज़ाम को मजीद पेचीदा कर दिया गया है। नए तालीमी निज़ाम के खिलाफ SFI ने मुल्क भर में मुहिम शुरू की। आवाम को नई तालीमी पॉलिसी की तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए SFI ने कौमी सतह पर बस यात्रा शुरू की है। यह बस विजयवाड़ा पहुंचने पर SFI और DYFI के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। SFI के लीडरों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। RSS के नजरियात को तालीमी निसाब में शामिल किया जा रहा है। Against this national education policy, which is only for private parties, only for corporate education sector. That means government totally withdrawing from education. That is what happening after implementing national education policy. Here in Andhra also they are trying to implement a national education policy. After started implementing national education policy, now the students from government schools going to private schools. That is what happening here. And privatization of aided schools also, the aided colleges also they are planning. So this rally, this Jada is against that policies of state government and central government. So across the country in coming days, huge protest against this national education policy and other Agnipaths and other schemes which is not offering permanent job to youth in India. So this is a campaign also. The coming days SFI will be continuous in the streets for protesting. This Jada raises very serious questions to the country. There is an onslaught going on against the students and education in India. There is a rampant privatization which denies the basic rights of education of the children in this country. In higher education, around 70% of the students are already in private institutions, which means most of the students are forced to pay huge fees to avail their higher education, which means that there will be a huge discrimination and exclusion from the higher education of the students who belongs to SC, ST, backward, tribal and minority deprived sections. There is huge communalization
Indian textbooks are being communalized towards, which will help for a Hindutva nation project. Now there is a Hindutva nation building with the corporate elements. So the constitutional rights, states' rights, federal values are being assaulted. The march is to save education, to ensure all children in this country getting better and equal opportunity for education. This is to save constitutional values of secularism, federal values and equality. This is a march to save India in a true sense. विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई मुलाजमीन ने कचरा टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन और CITU ने सफाई मुलाजमीन के एहतजाज की तारीफ की। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि इन्हें भी कचरा टैक्स अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कचरा टैक्स अदा न करने की सूरत में तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने हर घर को कचरा टैक्स के तौर पर 120 रुपया अदा करने का हुक्म दिया है, जिसके समाज के मुख्तलिफ गोशों से मुखालफत की जा रही है। మున్సిపల్ అధికారులు జారీ చేశారు. చెత్త పన్నే అడ్డగోలు పన్ను, రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన పన్ను. చెత్త పన్ను చెల్లించినట్టు రసీదులు ఇస్తే కానీ ఆగస్టు నెల జీతం ఎవరంట? ఎవరిచ్చారు ఈ అధికారం? ఇది కార్మిక చట్టాలకు విరుద్ధమైంది, నిబంధనలకు విరుద్ధమైంది. ఇచ్చే అధికారం లేదు. మున్సిపల్ కార్మికులకి కరోనా కాలం जिला नंदयाल के बंगान पल्ली में मुहर्रम जुलूस निकाला गया। इस दौरान शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वालों ने शहादत इमाम हुसैन की याद में अज़ादारी की। मुहर्रम जुलूस में हजारों अफराद शरीक थे। जुलूस के अख्ताम पर लंगर का एहतमाम किया गया था। जुलूस के दौरान खुसूसी कसीदे पढ़े गए। मुहर्रम जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दोबारा आशूर खाने पहुंच गया। मेरा आता हो गई बर्बाद ये बहना मेरी लाडली, चलो घर चले चलो चले करबला। बज़्म उर्दू करनूल की जानिब से माह मुहर्रम की मुनासबत से याद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के उन्वान से तरही मनक़बती मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। सैयद खादिम रसूल ऐनी ने मुशायरे की सदारत की। सैयद ज़ाकिर हुसैनी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अब्दुल वहाब सफदर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाफिज़ क़ारी फ़याज़ ने क़िरात कलाम पाक सुनाया। सैयद ज़हीर अहमद के अलावा और दीगर शोरा ने भी अपना कलाम पेश किया। नवाज़े रसूल है, नवाज़े रसूल है, अबू तुराब के पसंद नवाज़े रसूल है, बहुत ही नाज़िशे कमर नवाज़े रसूल है, बहुत ही नाज़िशे कमर नवाज़े रसूल है। वो जिनके कफ्श नक्श हैं, वो जिनके कफ्श नक्श हैं, जबीन अर्श पर रता। वो जिनके कफ्श नक्श हैं, जबीन अर्श पर रता है। कौन उनके दोष पर नवाज़े रसूल है कौन उनके दोष पर नवाज़े रसूल है। के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना, अज़ल से बेठिकाना, अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जा। कलीले राह खुदा में पिसर को दे ना सके, कलीले राह खुदा में पिसर को दे ना सके, उसी का इब्ने अली इख्तिताम करते हैं।
आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने अजमेर शरीफ का दौरा किया। अजमेर शरीफ के दीवान सैयद शाह गयासुद्दीन से मुलाकात की। मशाइख बोर्ड के अरकान ने अपने मंसूबे से सैयद शाह गयासुद्दीन को वाकिफ कराया और मुल्क भर में इस मंसूबे को शुरू करने पर जोर दिया। वज़ीर के आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड ने रियासत भर के तमाम दरगाह और आस्थानों के अहाते में स्कूल और दवाखाना खोलने का मंसूबा बनाया है। प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड के सदर जनाब ज़काउद्दीन साहब हुसैनी तशरीफ़ लाए यहाँ पे और इन्होंने अपने मशाइख बोर्ड की कारकर्दगी से मुझे आगाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खिदमत कर रहे हैं मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ और मैंने ख्वाहिश जाहिर की आपसे कि आप इसको बड़े पैमाने पे बल्कि इंडिया लेवल के पैमाने पे इसको बढ़ाएं और सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हमारे मशाइखीन और हमारे सूफी